Good morning, Vidyashwins. I hope you are doing fine and staying safe at home. So today in this video, we'll discuss our chapter 3 of literature, Safe Again. We'll read this chapter and we'll understand. Okay? So take out your literature books. Chapter 3, Safe Again. Let's start. A windhover is a small hunting bird. The story is based on a hunting bird called kestrel. Most of the time, the bird just hovers. What do you mean by hovers? Stays in the air and flaps its wings without moving forward. वो एयर में ही रहता था और वो अपने विंग्स फ्लैप करता था, बट वो आगे नहीं चलता था. वहीं पे he used to stays in the air and it flaps its wings, but it doesn't move forward. Here, a windhover tells its story. So, who narrated the story? A windhover. Who tells the story? A windhover. When I open my eyes, the sky is the first thing I see, and the wind is the first thing I feel. जैसे ही मैंने अपनी आईज खोली, सबसे पहले मैंने क्या देखा? Sky. And what was the first thing that he felt? Wind. Here, chipping from the egg close to my own broken shell. उसको क्या सुनाई देता है? Chipping from the egg. What do you mean by chipping? The sound of the beak tapping the shell from the egg to break it. Sound of a beak that is tapping the shell of the egg. एक beak की sound जो कि egg को तोड़ने की कोशिश कर रही है. A pointed beak burst through. एक pointed सी beak egg shell से बाहर निकलती है. There is more chipping and I see a tiny pale head. थोड़ी सी और chipping होने के बाद मैं क्या देखता हूँ? एक लाइट कलर का हेड, येलोइश कलर का हेड. A chick struggles out of its shell and then another. They are my brother and sister. तो वो दूसरे एग्स में क्या देखता है? उसके ब्रदर एंड सिस्टर को देखता है. They were struggling to come out from that eggshell and finally they managed to come out of the egg. Our mother and father bring us mice as fast as they can catch them. तो वो क्या लेके आते थे उसके मदर एंड फादर? माइस टू फीड देम. वो क्या खाते थे? माइस. वी ईट देम एंड वी ग्रो फास्ट बट आई ग्रो द फास्टेस्ट. क्योंकि वो बड़ा होता था तो वो कहता है कि हम माइस खा के ही बड़े हुए, लेकिन मैं सबसे ज्यादा बड़ा हुआ और सबसे पहले बड़ा हुआ. लेकिन वो कहता है बट आई ग्रो द फास्टेस्ट. मैं सबसे पहले बड़ा हो गया. वी लिव इन अ होल इन द वॉल ऑफ अ स्कूल. हम कहाँ रहते हैं? एक स्कूल की वॉल के छोटे से होल में. The stretch our wings and flap them just like our parents do. तो हम अपने पेरेंट्स को देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं ना, कैसे खाना है, कैसे चलना है. तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा? How to flap their wings. The children in the playground are now looking up and pointing at us. तो जो स्कूल के जो होल में रहते थे, तो स्कूल के बच्चे उन्हें देखते थे. The children in the playground are now looking up and pointing at us. They are saying, "Look at the baby windowers. Look at their fluffy feathers." अब आपके स्कूल में अगर कोई नेस्ट बनता है, क्यूट क्यूट से बर्ड्स हो आपके जैसे, तो आप उन्हें देखोगे ना, आप अपने फ्रेंड्स को बोलोगे ना, "Look at that bird and look at its fluffy feather." ऐसे ही वो बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे थे. One evening after school, I hear a sound of footsteps coming towards us. एक शाम को मैंने क्या सुना? फुटस्टेप्स, पैरों की आवाज सुनी जो मेरी तरफ आ रही थी. वी शफल टू द बैक ऑफ द रूस्ट. तो मैं पीछे पीछे शिफ्ट हो गया. वी सी अ डार्क शेप ओवर अस एंड वी स्क्रीच, की की. दिस इज नॉट अ मदर और फादर. तो वो जब डर जाता है फुटस्टेप्स की आवाज से, तो वो क्या करता है? शफल टू द बैक ऑफ द रूस्ट. वो जहाँ पे वो रेस्ट कर रहा होता है, वो पीछे 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 होता जाता है, बिकॉज उसको डर लगता है कि फुटस्टेप्स आर अप्रोचिंग. सो आउट ऑफ फियर ही वॉक्स स्लोली. ही गॉट स्केयर्ड ऑफ द फुटस्टेप्स. तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है? वो धीरे धीरे पीछे चुपके से शिफ्ट होता है अपने आप को बचाने के लिए. और वो क्या बोलता है? दिस इज नॉट मदर और फादर. इतनी बड़ी शेडो है
और ये मेरे मम्मी और मेरे पापा की तो शेडो नहीं है, तो वो किसी और की शेडो है। लेट्स फाइंड आउट वो किसकी शेडो है। आई peck at it and strike with my claws. तो वो क्या करता है, he tried to bite it, उसको बाइट करने की कोशिश करता है, and strike with my claws, वो अपने पंजे से उसको मारने की कोशिश करता है। The creature makes a strange noise and holds me tight. मुझे टाइटली पकड़ लेता है और पता नहीं क्या बातें करता है। I am bundled into a sack and taken from my home. और मुझे किस में डाल देता है, एक बैग में डाल देता है, पेपर बैग और एक प्लास्टिक बैग, उसमें वो डाल देता है और उसको कहीं पे ले जाता है। टर्न योर पेज, फर्स्ट लाइन। आफ्टर अ वाइल समवन ओपन्स द सैक, थोड़ी देर बाद कोई सैक को खोलता है। आई एम डेजल्ड बाय द लाइट, आई एम डेजल्ड बाय द लाइट मीन्स अनेबल टू सी फॉर अ शॉर्ट टाइम बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट। जब आप सुबह उठते हो तो जब मम्मा लाइट जलाती है तो आपकी आईज नहीं खुलती ना थोड़ी देर के लिए, बिकॉज आप सारी रात सो रहे होते हो अंधेरे में। जब अचानक से अंधेरे से हम रोशनी में आते हैं, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओपन आवर आईज एंड लुक एट द लाइट। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, आई एम डेजल्ड बाय द लाइट मीन्स ही वॉज नॉट एबल टू सी। आई ट्राई टू फ्लाई बट क्रैश इन टू स्ट्रॉन्ग बार्स, मैंने बहुत कोशिश करी उड़ने की बट ऑल इन वेन, कि उसे पिंजरे में बंद कर दिया था तो वो कैसे बाहर निकलता। वेयर इज माई होम, वेयर आर माई पेरेंट्स, माई ब्रदर एंड सिस्टर, वेयर इज द स्काई। तो वो पूछता है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ है, मेरे भाई बहन कहाँ है। तो वो उनको ढूंढता है, वो स्काई को ढूंढता है बट उसे स्काई भी नहीं मिलता बिकॉज उसको पिंजरे में बंद कर दिया होता है। अगेन एंड अगेन आई थ्रो माई सेल्फ अगेंस्ट द बार्स एंड फॉल, वो दोबारा से ट्राई करते हैं बाहर निकलने की लेकिन वो बार बार गिर जाता है। देन आई हियर अ वॉइस से आई वॉन्ट यू जस्ट फॉर माई सेल्फ माई फ्रेंड। तो उसको आवाज आती है, कोई ये बोलता है उसे कि आई वॉन्ट यू जस्ट फॉर माई सेल्फ, somebody wants to keep the bird as pet, which is wrong. हम बर्ड्स को एज पेट कैसे रख सकते हैं, उन्हें उड़ना पसंद है और अगर हम उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, राइट। तो वो उसे बोलता है आई वॉन्ट टू कीप यू फॉर माई सेल्फ, मैं तुम्हें अपने लिए रखना चाहता हूँ। वेन ही ब्रिंग्स मी फूड ही डज नॉट टीयर इट इनटू स्मॉल पीसेस, जब वो मेरे लिए खाना लाता था तो वो उसे छोटे छोटे पीसेस में नहीं टीयर करता था, क्योंकि बर्ड का माउथ कितना सा होता है, छोटू सा, लेकिन अब वो उसको बड़े बड़े पीसेस ला के देता तो वो कैसे खाता, तो उससे खाना ही नहीं खाया जाता था। एंड सो आई कैन नॉट ईट इट, आई बिकम थिन एंड वीक, इसलिए उससे खाया नहीं गया और वो बिल्कुल पतला सा और कमजोर सा हो गया। द बॉय नाउ कवर्स माई हेड एंड आई फील माई फीट बींग टायर्ड। अब बॉय ने क्या किया, उसका हेड कवर कर दिया, तो उसे क्या कैसे फील होने लग गया, एज इफ वो उसको बांध दिया गया है, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई। देन सडनली आई हियर अ वॉइस ऑफ अ गर्ल, तो उसको सडनली किसकी वॉइस आती है, किसकी आवाज आती है, ऑफ अ गर्ल, एक लड़की की आवाज आती है। हे स्टॉप क्राइज द गर्ल, वेयर आर यू टेकिंग आवर विंड ओवर, शी आस्क्ड द बॉय एंग्रीली। उसको क्या आवाज आती है, हे स्टॉप क्राइज द गर्ल, रुको, लड़की बोलती है। वेयर आर यू टेकिंग आवर विंड ओवर, तुम विंड ओवर को कहाँ लेके जा रहे हो। शी आस्क्ड द बॉय एंग्रीली, वो उस लड़के को जिसने विंड ओवर को चुरा लिया होता है उसको बहुत गुस्से से बोलती है। आई हैव हर्ड दैट वॉइस बिफोर, वो विंड ओवर बोलता है कि मैंने ये आवाज पहले भी सुनी है। हु इज शी, वो कौन है। Oh yes, she's the girl who visits us every day and brings us food sometimes. Oh yeah, अब उसको याद आया, she's the same girl who visits us every day and brings us the food. तो वो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो हमारे लिए खाना लेकर आती थी। I try to squeak, वो क्या करता है, आवाज निकालने की कोशिश करता है कि वो लड़की मेरी आवाज सुने and she'll save me. You stole our wind over, cries the girl. वो उस लड़के के ऊपर चिल्लाती है, तुमने हमारे विंड ओवर को चुराया। लीव मी अलोन, द बॉय शाउट्स एट हर, तो वो लड़का क्या बोलता है, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। What has happened to him? He is so thin, the girl exclaims. तो लड़की बोलती है, इसको क्या हो गया, he is so thin, ये कितना पतला हो गया है।
I want to keep him. He's mine, shouts the boy. तो बॉय बोलता है कि मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूँ, ये मेरा है. A wild bird can't be yours. You must put him back or he'll die, says the girl. तो वो लड़की बोलती है कि एक वाइल्ड बर्ड जो किसी का पेट नहीं होता है, वो किसी का नहीं हो सकता है और वो तुम्हारा नहीं हो सकता है. You must put him back or he'll die. तुम उसे उसकी जगह पर वापस रख दो, अदरवाइज वो मर जाएगा. But I don't want him to die. तो उस बॉय को रियलाइज होता है कि मैं उसको मारना नहीं चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मर जाए. तो वो बॉय उस टाइम पे सॉफ्ट और बहुत ही सैड हो जाता है कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था. If you put him back, I promise not to tell anybody. अगर तुम उसे वापस रख दोगे तो I promise you मैं किसी को नहीं बताऊंगी. Suddenly I am free. I can hear the noise of the playground. तो सडनली मुझे क्या फील हुआ कि मैं फ्री हो गया. उस जो बॉय था उसने उसको फ्री कर दिया था बिकॉज ही रियलाइज हिज मिस्टेक कि अगर मैं उसको अपने पास रखूंगा तो वो मर जाएगा. तो उसने उसको छोड़ दिया. Soon I am home. तो वो अपने घर वापस चला जाता है. My brother and sister hiss at me. उसके ब्रदर और सिस्टर कुछ पता ही नहीं होता है. What do you mean by hiss at me? Make an angry noise to chase me away. तो वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं. Don't they know me? क्या उन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? I say की. तो वो उनसे बातें करता है. I hear great beating wings once more. तो उसे दोबारा से विंग्स की आवाज आती है. वो किसकी आवाज थी? My mother. My mother is flying down to feed me and now I know I am safe. तो वो आवाज किसकी थी? उसकी मम्मा की. और अब उसे रियलाइज हो गया कि अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ. आपको भी फील होता है ना whenever you are with your mother? आपको भी सेफ फील होता होगा. ऐसे ही बेबी विंडोवर को भी बहुत सेफ फील हुआ with his mother. This was all about this chapter, Safe Again. Now, who is the writer of this chapter? Alan Brown. Alan Brown has written books for children and adults. He became a writer after working as a teacher for many years. So you should learn the name of the writer. And what is the name of the chapter? Safe Again. So I hope you will write all the question answers, vocabulary, word meanings very neatly, very properly. So we'll meet again with another topic of literature in our next video. Till then, take care, stay safe, be good students, don't bother your parents. Okay? Bye-bye.